Hello everyone, welcome back to this video. Now we have been dealing with the poem for class 5th students. Okay, and the title of the poem we have seen already, Ice Cream Man. Okay, and we have seen in this lesson how the ice cream man comes. Okay, and what are the things he brings with him. Okay, and what are the different flavors of ice cream he has with him. And how the children act when the ice cream man comes in the village. Okay, how they gather around the ice cream man. And all these things we have understood in the poem. Yes or no? So, in this video we'll see some of the words meaning and then we'll continue with the question and answer of this poem. So, let us see the words meaning here. New words, some of the new words we came across in the poem. Okay, their meaning also we don't know. So, you must learn this words meaning with the spelling, my dear students. Okay, so let us see blaze. What is the meaning of blaze? Bright flame or fire. It is a bright flame or fire. When it comes during the summer season, when the sunlight is there, temperature increases. So, how does it look? Like a bright flame and fire. Okay. Trundling. Trundling, what is that? Trundling down the street. When during the summer season, ice cream man is coming with his little car. And his little car, what? It moves, okay, on the street. Trundling down. Okay, what is that meaning? Moving on small broad wheel. Okay, उसका जो wheel है, वो कैसे छोटा सा है, but वो broad है. तो जब वो रास्ते में जाता है, तो कैसे थोड़ा सा अन्य दिखता है. Okay, so उसका moving को, movement को, उसमें क्या बताया गया है कि ट्रैवलिंग करता है. Mounds, okay, here it is heap or pile. So what is a mounds? We have seen in the ice cream man, the cone is there. Okay, inside in the cone, the mounds is being filled. Ice cream man क्या करता है वो cone में? वो mounds जो है उसको fill करता है. Okay, वो creamy and cold things को cone में वो fill करता है. उसको क्या बोला जाता है? Mounds बोला जाता है. Okay, mounds. It is called mounds. Frosty feast. Frosty feast. What is the meaning of frosty feast? Let us see. Chill rings making a hissing, bubbling sound. Frosty feast is what? It is like a thumbs up Sprite you might have seen. When you open that lid of that bottle, okay, जब वो bottle का ढक्कन को हम खोलते हैं तब कैसे होता है? वो hissing sound आता है और वहां से थोड़ा सा bubbling भी आने लगती है. तो उसी प्रकार का ड्रिंक्स को क्या बोला जा रहा है? Frosty fizz बोला जा रहा है. Okay, and he was bringing different kinds of frosty fizz also. Okay, orange, green and अलग अलग कलर्स का वो लेकर आया था. किसने? आइसक्रीम मैन ने अपने साथ. Cluster, okay, cluster around, gather around a group of similar things. Cluster, what is a cluster? Coming together. जब वो कोई भी चीज आता है तब उसके अराउंड पूरा सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं. उसको क्या है? क्लस्टर. जैसे कि जब भी आइसक्रीम मैन आता है गांव में, okay, here also it is mentioned, when the ice cream man comes in the city during the summer, then what happens? Children come around the ice cream man और उसके चारों तरफ वो खड़ा हो जाते हैं. इसलिए आइसक्रीम का मजा लेने के लिए वो आ जाते हैं. Yes or no? So that is what cluster, gather around a group of similar thing. और उसको कैसे मेंशन किया गया है हमारा पोएम में? क्लस्टर अराउंड. बच्चों को किसके साथ कंपेयर किया गया है? कि हनी बीस के साथ कंपेयर किया गया है. जैसे कि हनी बीस एक क्लस्टर होते हैं, गैदर अराउंड होते हैं, उसी तरह बच्चे भी जब आइसक्रीम मैन आता है तब आइसक्रीम मैन के चारों तरफ क्या होते हैं? गैदर हो जाते हैं. Reading is fun. Next activity, let us see. Reading is fun, and we start with the question and answer here. Question number 1. In which season is ice cream popular? कौन से सीजन में ice cream popular? सभी को पता है कौन सा सीजन है? Summer season. Anybody can say it is a summer season in which ice cream is popular, and everybody likes the ice cream during the summer season. So what is the answer here? Ice cream is popular in summer season. So what is the answer? Ice cream is popular in which season? Summer season. Next question. Who feels joyful on seeing the ice cream man? Now, when the ice cream man comes in the village, who feels joyful? किसको ज्यादा आनंद लगता है जब आइसक्रीम मैन को देखते हैं कि गांव में
आया हुआ है. Who are the people? You know, most of the time children. Even though everybody likes the ice cream, but बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आनंद लगती है, ज्यादा आनंद होती है. ओके, वही ज्यादा से ज्यादा जॉयफुल फील करते हैं. Children feel joyful on seeing the ice cream man. Children feel joyful on seeing the ice cream man when the ice cream man comes in the village. Next question. Name the different flavor of ice cream the ice cream man has in his car. Now, ice cream man has got different flavors of ice cream with him, not only one flavor. And what are the flavor of ice cream the ice cream man has brought with him? Let us see. वनीला लाया है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. ये तीनों प्रकार का फ्लेवर उसने अपने साथ लाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the two things that the ice cream man is selling? और कौन कौन सा दो चीज है आइसक्रीम मैन अपने साथ लाया है और अपने साथ बेच रहा है? कौन कौन सा दो चीज है? एक कोल्ड ड्रिंक है और एक आइसक्रीम है. यस और नो? लेट अस सी द आंसर. The ice cream man is selling ice cream and cold drinks. Different flavors of cold drinks, different colors of cold drinks. Okay, bubbling sound, hissing sound. First piece he has brought. Next question. What is the ice cream cart compared to in the poem? हमने देखा है कि आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है, उसका जो गाड़ी है, वो कैसे दिखता है? पूरा डिफरेंट दिखता है, पूरा अलग अलग, पूरा इतना अच्छा दिखता है कि हमको लगता है कि वो एक आइसक्रीम मैन का गाड़ी नहीं बल्कि वो एक बेड हो सकता है, फ्लावर बेड हो सकते हैं. ओके, क्योंकि उसको ऐसे डेकोरेटेड किया गया है कि ऐसे डेकोरेट किया गया है, ऐसे सजाया गया है कि आइसक्रीम के पिक्चर से, आइसक्रीम के पिक्चर्स के और कोल्ड ड्रिंक्स के पिक्चर से और डिफरेंट फ्लेवर्स का आइसक्रीम के पिक्चर से और डिफरेंट कलर्स का कोल्ड ड्रिंक्स के पिक्चर से उसको सजाया गया है. और वो कैसे दिखता है? एक फ्लावर बेड जैसे दिखता है. और यहाँ पे पॉइंट में वो इसी तरह एक फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है आइसक्रीम मैन के कार्ड को. द आइसक्रीम कार्ड इज कंपेयर टू ए फ्लावर बेड. एंड कौन सा फ्लावर बेड के साथ? बेड ऑफ रोसेस. ओके, रोसेस एंड स्वीट पीस. ओके, let us write. Next activity. Let us write. Having an ice cream on hot summer day is exciting and enjoyable. Yes or no? समर सीजन में जब बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है, तब आइसक्रीम खाना कितना मजा लगता है हमको, कितना आनंद लगता है. ओके, हाउ नाइस इट इज टू टेक ए आइसक्रीम ड्यूरिंग द हॉट समर टाइम. ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इट सेज. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. So here we have to write. समर सीजन में हमको आइसक्रीम अच्छा लगता है, पर विंटर सीजन में which are the activities? In winter season, which are the activities? What are the things one can do? And that are the things that exciting and enjoyable things one can do. Okay, there are many activities we can do. So here some of the activities are noted down. Okay, so let us read. In spite of these activities, you can have many more activities. Okay, बहुत सारे activities आपको पसंद है, तो वही सारे activities आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं. Okay, so here 6 activities are mentioned. Playing in the sunshine हमको अच्छा लगता है, sunshine धूप में खेलना अच्छा लगता है winter season में. Drinking hot soup अच्छा लगता है. Eating popcorn, okay, popcorn खाना भी अच्छा लगता है. Then wearing sweater, okay, wearing sweater हमको अच्छा लगता है, okay, क्योंकि हमारे बॉडी को वार्म चाहिए उस टाइम में. Then warming the body, हमारे बॉडी को क्या करना, वार्म करना भी बहुत अच्छा लगता है. और इसकी वजह से क्या करते हैं, हम चूल्हे के पास जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को थोड़ा सा गर्मी मिलेगी. ड्रिंकिंग हॉट टी ऑल्सो बहुत अच्छे है. किस सीजन में? विंटर सीजन में. ओके, let's see next question. List as many summer activities as we can. अभी ये समर एक्टिविटीज जितना पता है आपको और जितना एक्टिविटीज आप समर सीजन में कर सकते हैं, उसी एक्टिविटी का लिस्ट बनाना है यहाँ पे. ओके, बहुत सारे एक्टिविटीज हम समर सीजन में कर सकते हैं, है ना. जैसे कि आइसक्रीम खाना, स्विमिंग करना, बहुत सारे एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं. तो जितना एक्टिविटी हमको पता है, जितना एक्टिविटी हम कर सकते हैं, वो सारे के सारे
नाम लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ से लिखा हुआ है। और अलग एक्टिविटीज भी आप लिख सकते हैं, ईटिंग आइसक्रीम, स्विमिंग इन द पूल, ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, वाचिंग टीवी, eating mangoes, going to the hill station. These are some of the activities you like to do in the summer season. But इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज है जो आपको पसंद है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमने तो लिस्ट बनाया समर सीजन में कौन कौन सा एक्टिविटीज हमको करना पसंद लगता है और कौन कौन सा एक्टिविटी हम करते हैं। तो उसी एक्टिविटीज को हमको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। ओके, उसी एक्टिविटीज को हमको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। ओके, कुछ एक्टिविटीज को हम घर के बाहर ही कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज को हम घर के अंदर ही कर सकते हैं। ओके, तो जो भी एक्टिविटीज जो हम घर के बाहर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज। क्या, आउटडोर एक्टिविटीज। ओके, और जो भी एक्टिविटीज जो हम घर के अंदर करते हैं और जो हम घर के अंदर ही कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोर एक्टिविटीज। ओके, तो ये दो ग्रुप में हमको उनको बांटना है। ओके, इंडोर एक्टिविटीज घर के अंदर, आउटडोर एक्टिविटीज घर के बाहर। ओके, देखते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स घर के अंदर कर सकते हैं, वाचिंग टीवी घर के अंदर, देयर आर many more activities are there that we can do inside the house. So उस सारे लिस्ट आपको बनाना है, 4, 5, 6, 7 जितना भी हो सके। ओके, यू कैन राइट मेनी मोर। देन हियर आउटडोर एक्टिविटीज यू सी, घर के बाहर जो एक्टिविटी हम करते हैं समर के टाइम में, स्विमिंग इन द पूल आउटडोर एक्टिविटी एंड प्लेइंग क्रिकेट आउटडोर एक्टिविटी। ओके, एंड उसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज जो है हम आउटडोर एक्टिविटीज बोलेंगे जिसको हम घर के बाहर करते हैं, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन राइट। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एक्टिविटी or next question. Say aloud. Okay, we have to say aloud, we have to pronounce these words, we have to read these words, and here what we have to do, in whichever words there is a Z sound, जो भी word में आपको Z sound मिलेगा उसका हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, चलो हम हर एक वर्ड्स को थोड़ा सा रीडिंग करके देखते हैं। ओके, एक को हमके लिए किया गया है, ओके, हनी बीज, हनी बीज, यहाँ पे जेट साउंड आता है यहाँ पे। ओके, इसलिए उसको क्या किया गया है, अंडरलाइन किया हुआ है। देन प्राइस, जेट साउंड है क्या, यहाँ पे जेट साउंड नहीं है, यहाँ पे सी साउंड है। ओके, सो ये नहीं है। देन प्राइस, हाँ यहाँ पे जेट साउंड है हमारा प्राइस में। ओके, सो अंडरलाइन। मेज, यहाँ पे भी जेट साउंड है, सो वी हैव अंडरलाइन इट। देन फेस, इट इज नॉट जेट साउंड बट इट इज सी साउंड। देन राइस, नो, राइस, yes, blaze, yes, it's also jet sound. Fish, again here also jet sound. Lazy, yes, jet is there, jet sound is there. And lazy, no. Then busy, yes, jet sound is there here also. Okay, then racy, no jet sound. Then raise, okay, jet sound is there. Then raise, here again, here also is jet sound. Jet sound is there. Then raise, no jet sound. A, no jet sound. Okay, then chase is the jet sound, no. Then this, no jet sound, but these, okay, these here it is jet sound is there. This is the plural of these. Okay, then frosty is the jet sound, no. So whatever the word which is having jet sound, that we have underlined it. Okay, let us see next. Let us listen. Okay, let us listen. As we did the previous activity, the same way here also we are going to do the sounds, whatever sounds we get from that word, that we have to identify. Okay, listen and tell the sounds that these words in the poem produce. Okay, ये जो दो वर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड को हमने पोएम में भी देखा है, तो ये दोनों वर्ड में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, इसके अगले वाले जो एक्सरसाइज हमने किया उसमें जो भी वर्ड जेट साउंड प्रोड्यूस करता था उसको हमने अंडरलाइन किया, तो ये वर्ड में उसी तरह कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि का कौन सा साउंड है, आरटी साउंड है, जैसे तो देन रिंग्स, यहाँ पे कौन सा साउंड है, एनकेस साउंड है। सो वी हैव डन इट। कैन यू मेक दीज साउंड्स, कैन यू मेक दीज साउंड्स? सो टेल cat, okay, and rings, cat and rings.
Then, what are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? अभी जब आइसक्रीम मैन आता है हमारे गांव में, ओके, तो हमको कौन कौन सा साउंड सुनने को मिलता है? कभी कभी वो गाना बजाते हुए आता है, कभी कभी वो घंटी बजाते हुए आता है, ओके, कभी कभी वो चिल्लाता है, उसका हॉर्न बजाते हुए आता है. ओके, सो व्हाट आर द साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स? ओके, तो आपके गांव में जब आइसक्रीम मैन आता है कौन कौन सा साउंड आपको सुनाई देता है? तो उसी साउंड को आपको लिखना है. ओके, जैसे कि पीप पीप और टिंग टोंग और व्हाट एवर साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स. सो यू हैव टू राइट those ice cream man's sound when you hear he comes. Okay, so वो आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है. Okay, next word building here. Okay, word building. Color the boxes that have rhyming words. अब इस boxes में आपका टेक्स्ट बुक में देखो ये सारे बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं. तो ये बॉक्स में जो भी वर्ड्स है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर देयर. ओके, एक जोड़े वर्ड्स है, तो उनमें से कौन कौन सा बॉक्स का वर्ड राइमिंग कर रहे हैं, तो उसी बॉक्स को आपको क्या करना है? कलर देना है. ओके, ओके, एंड दिस इज आल्सो योर activity. You have to pronounce these words, and then if they are rhyming with each other, you have to color them. Okay, different color you can put. Okay, city, car, is it rhyming with each other? No. Hit, street, yes. Okay, blows, goes, yes. Do, go, no. Hard, year, yes. And ball, doll, yes. Cow, saw, yes. And level, table, yes. Sky, my, yes. Play, obey, yes. Race, face, yes. And write, nine, yes. Okay, so these are the words which are rhyming with each other. You have to color them. The next question number 2. What do the following words describe in the poem? अभी ये जो word दिया हुआ है, joyful है, little है, round है, तो ये जो joyful, little, round है, ये किस word को describe कर रहा है, या फिर किसके बारे में बोला गया है? ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव. अगर आपको याद है, फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा ही होगा. ओके, ग्रामर का पहला लेसन. ओके, एडजेक्टिव क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड से ये सारे के सारे. सो ये कौन सा चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है? जॉयफुल, साइड, लिटिल, कार एंड राउंड अम्ब्रेला. क्वेश्चन नंबर 3. What are these describing words used in the poem for the following? अभी यहाँ पे ये जो वर्ड है, माउथ से, फ्लेवर है, क्लस्टर है, तो ये तीनों वर्ड्स जो है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है, वो किस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है? देखते हैं. कूलिंग, ब्राउन, वाइट, माउथ. ठीक है, माउथ के बारे में ये बोला गया है. और उसके बाद फ्लेवर कौन सा है? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी. ये तीनों फ्लेवर के बारे में बोला गया है, आइसक्रीम का फ्लेवर है. उसके बाद ये जो चिल्ड्रेन, हनी बीज. ओके, ये क्लस्टर है, किसके बारे में बोला गया है? चिल्ड्रेन और हनी बीज के बारे में बोला गया है. और यहाँ पे चिल्ड्रेन और हनी बीज ये दोनों चीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है. यस और नो? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज विल बी डन इन द कमिंग videos. Okay, so my dear students, we shall meet again in the next video and new lesson. Okay, thank you for watching.